Very good morning, 10th class. How are you all? I hope you all are safe, healthy, following all health protocols, and studying side by side. Just a small recap of yesterday's lesson. We have learnt about the aristocratic society of Europe, how society was divided into rich and poor, landlords and peasants. And with industrial development, technological development, rose a new class that was popularly known as the middle class, which was educated, technically strong businessmen, traders, the commercial class. ये हमारा कल का लेसन था जो हमने पढ़ा था. We were talking about nationalism. So first we will understand what is the meaning of nationalism, liberal nationalism और अलग अलग fields में. अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग fields में what was this liberal nationalism. So the ideas of national unity in early 19th century Europe was closely related to. What is the meaning of allied? Related to the ideology of liberalism. Means freedom and liberalism, they developed side by side. Now the meaning. The term liberalism derives from the Latin root liber. Latin word है liber. वहाँ से originate हुआ है English word liberalism and it means free. Underline करो बच्चों. The term liberalism derives from the Latin root liber. Liber means free and ism means theory. So this is what we say the theory of freedom. Liberalism Latin word से आया है. अब हम देखेंगे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए अलग अलग लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था. रिमेंबर डेवलपमेंट लेसन. डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. इन द सेम वे लिबरलिज्म का मतलब भी अलग अलग फील्ड्स में अलग लोगों के लिए अलग मतलब था. नाउ फॉर द न्यू मिडिल क्लास विच हैज़ रोज, जिसके बारे में कल हमने समझा था. मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या है. फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर, अंडरलाइन करो, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर द लॉ. दिस इज है ना, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. दिस इज लिबरलिज्म. फ्रीडम. अभी तक सोसाइटी में वो रिच पुअर का डिफरेंस था. रिच वर मास्टर्स एंड पुअर वर लाइक द स्लेव्स, सर्फ्स. नाउ फॉर मिडिल क्लास लिबरलिज्म मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ. कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. देन इन पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. कैन एनीबडी गिव मी वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस. गवर्नमेंट बाय कंसेंट किसे कहते हैं बच्चों हम. गवर्नमेंट बाय कंसेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सबकी मर्जी से चुनी गई गवर्नमेंट, ये है लिबरलिज्म. तो इन पॉलिटिकल फील्ड व्हाट डज लिबरलिज्म मीन. द गवर्नमेंट बाय कंसेंट. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy. Autocracy means the rule of the king and clerical privileges, वो जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट इंजॉय करते थे. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यही तो है डेमोक्रेसी. तो सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन अ न्यू कॉन्सेप्ट केम इनटू बीइंग. एक नई चीज़ सामने आई थी. That government by consent, a constitution and representative elected by the people ruling the country. तो ये थी political field में liberalism, जिसे आज हम क्या कहते हैं, democracy. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. Inviolability of private property means सबको मिलनी चाहिए. अभी तक private property पर किसका हक था. Only the first and second estate, only the aristocratic classes, the peasants, the poor people, the workers, third estate people, they were not allowed to keep property. But now it was said
दैट फ्रीडम मीन्स प्रॉपर्टी भी सबके पास होनी चाहिए. दे शुड बी फ्री टू मेक देयर प्रॉपर्टी. बट equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Okay, who's going to tell me the meaning of universal suffrage? 9th में civics में पढ़ा होगा. Universal adult franchise. Suffrage means right to vote. So universal suffrage means all the citizens, adults of the country have right to vote. लेकिन उस समय यूनिटी बिफोर लॉ का मतलब सबके पास राइट टू वोट नहीं था. राइट टू वोट सिर्फ क्या है? रिमेंबर रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जहाँ सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन. द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव सिटीजन्स पढ़े थे. एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? ये एक्टिव सिटीजन्स men above the age of 25 and paying taxes, means the rich men. Only they had right to vote. तो स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी की जब स्टार्टिंग हुई, वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनने लगी, तो कंसेंट में या पूरी पॉपुलेशन का कंसेंट नहीं था. ओनली द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू द एक्टिव सिटीजन्स और द प्रॉपर्टी ओइंग मैन. Men without property and all women were excluded from political rights. उन्हें ये rights नहीं दिए गए थे. Neither they had right to vote, nor they were allowed to stand in elections. So, no, the poor men and all women, they didn't have this right. Only for a brief period under the Jacobins. सिर्फ जो 1 साल का वो Jacobins का रूल था, ड्यूरिंग दैट टाइम डिड ऑल अडल्ट मेल्स enjoy suffrage. किसके समय? ये भी अंडरलाइन करो. सिर्फ ऑल मेल्स गॉट राइट टू वोट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेकोबिन्स. हाउएवर द नेपोलियनिक कोड 1804 में व्हेन नेपोलियन enforced his code, he went back to limited suffrage. Again, active citizens were given right to vote and reduced women to the status of a माइनर. विमेन को कोई राइट्स नहीं मिले थे. दे हैव टू लिव अंडर द पेट्रोनेज ऑफ आइदर द फादर, द हस्बैंड और द सन. कोई ना कोई मेल उनका टेक केयर करेगा. उन्हें कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई थी. सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स. Throughout the 19th century and earlier 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. See, rich men got political right. कौन सा है political right? Right to vote. कब मिल गया था rich men को? During French Revolution. Even after Napoleon gave that right to all propertied men, rich men. बाकी सबको नहीं मिला था. तो ये बाकी सब में कौन आ रहा है? Non-propertied men and all women. Whether they belong to rich class or poor class, they didn't have right to vote. So they have to raise movement. आंदोलन करने पड़े, struggles करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा. कब? Full 19th century and 20th century. Then only they got this equal political right. What is equal political right? Right to vote and stand in election. तो इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर इन्हें ये राइट टू वोट मिला. तो पॉलिटिकल फील्ड में राइट टू आई एम सॉरी पॉलिटिकल फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब क्या है बच्चों? हैविंग राइट टू वोट और पॉलिटिकल राइट. दैट इज लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल फील्ड. तो अभी तक हमने 2 पढ़े. मिडिल क्लासेस के लिए क्या मतलब था लिबरलिज्म का, और पॉलिटिकल फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड एवरीबडी हैविंग राइट टू वोट. Now we will study about economic sphere. Economic sphere में right का I'm sorry liberalism का मतलब क्या है? In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. Underline करो इसे. Economic field में liberalism का मतलब क्या है? Freedom of market. What do you mean by freedom of market? Freedom of market means the traders, the businessmen,
the commercial classes, they are free to buy and sell anything. उन पर गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना. द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल इन इकोनॉमिक स्फीयर? मनी, फाइनेंस. इनके लेन देन पर कोई पाबंदी ना हो, टोटली फ्रीडम हो. दिस इज लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर. Now there's an example given here, quite an interesting thing, of German speaking regions. During the 19th century, there was a strong demand of the emerging middle classes. जो emerging middle classes थे, याद है बच्चों? They were commercial classes. They strongly demanded liberalism in economic field. Now there's an example of German speaking regions in the first half of the 19th century. Here there's an example given. See, remember, Germany is not a nation. अभी तक जर्मन नेशन नहीं बना है. सिर्फ क्या है बच्चों? जर्मन स्पीकिंग एरियाज. ये जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इन सारे जर्मन स्पीकिंग एरियाज को नेपोलियन ने, भाई उसको काम करना आसान, ही हैड कॉन्कर्ड ऑल दोज एरियाज. जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे, दे वर कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन. एंड फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो आसानी से एडमिनिस्टर कर पाए, तो उसने क्या किया था, ऑल दी स्मॉल स्टेट्स, स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, ही हैड मेड अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. उसने ये सारे जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ को एक कॉन्फेडरेशन, या हम कह सकते हैं फेडरेशन. फेडरेशन पढ़ा है ना हमने सिविक्स में, स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट. सो दैट नेपोलियन हैड डन बाय कंबाइनिंग दीज 39 स्टेट्स इनटू अ जर्मन कॉन्फेडरेशन. नाउ मोस्ट ऑफ दीज 39 states, they were ruled by different small kings, feudal lords or kings. नंबर है देखो 39, अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक कॉमनैलिटी क्या है, दैट द पीपल लिविंग इन दीज स्टेट्स आर स्पीकिंग जर्मन लैंग्वेज. तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए, इसलिए नेपोलियन ने इनको मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन बनाया. अब देयर आर 39 स्टेट्स. ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी. सबके पास अपनी करेंसी है, अपने वेट्स और मेजर्स हैं. नाउ व्हेन अ बिजनेसमैन इज डूइंग बिजनेस विद इन दीज स्टेट्स, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हेम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Custom duty जैसे हम आज का टोल कह सकते हैं. जब हम अपनी सिटी से किसी और सिटी के लिए जाते हैं और रास्ते में टोल आता है, वे देर यू हैव टू पे टोल, वो रोड्स के लिए है. लेकिन उस समय जो ये 39 स्टेट्स थे, सबके अपने अपने टोल थे. अगर एक मर्चेंट, मान लीजिए एक स्टेट से, हेम्बर्ग से न्यूरमबर्ग दे रखा है, यहाँ बीच में 9 to 10 स्टेट्स आ रहे हैं और वहाँ से जा रहा है, राजस्थान से तमिलनाडु, बीच में बहुत सारे स्टेट्स आ रहे हैं. हर स्टेट को क्रॉस करते समय द मर्चेंट हैड टू पे अ टैक्स दैट वाज कस्टम ड्यूटी ऑफ 5%. हर स्टेट के बैरियर पे ही हैड टू पे 5%. अब आपको पता है बच्चों, ये 5% किसका? द गुड्स दैट ही इज कैरिंग, उनकी वैल्यू का 5% टैक्स. जितने भी गुड्स वो बेचने के लिए ले जा रहा है, उनकी जो वैल्यू है, जितने के वो गुड्स हैं, उनका उसका 5% टैक्स देना पड़ता था. तो इफ़ ही इज़ क्रॉसिंग 10 बैरियर्स, कितना हो गया? 50, है ना. 5% एक स्टेट पे, 5% एक स्टेट पे. चलो ठीक है, दे दिया. अब मैंने आपको बोला गुड्स कितने हैं. गुड्स की वैल्यू वेट और मेजर से निकलेगी. हर स्टेट का वेट्स और मेजर अलग अलग है. तो इससे क्या होता था, हर कस्टम बैरियर पर, व्हेन ही इज गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, देयर इज़ अ कस्टम बैरियर. वहाँ पर उसे अपने सारे गुड्स नपाने तुलाने पड़ते थे, क्योंकि हर सिस्टम, हर स्टेट का वेट्स और मेजर अलग अलग थे.
अभी एक स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर है, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम हमने सब जगह अडॉप्ट कर रखा है, तो मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को मुश्किल नहीं होती है। हाँ, उन्हें सिर्फ बताना पड़ता है इतना किलो है, इतना टन है, इतना मीटर है, और उस हिसाब से काम होता है। बट एट दैट टाइम हर स्टेट का मेजरमेंट अलग होता था। तो अगर कपड़ा लेकर जा रहा है तो हर स्टेट के बैरियर पर अपना कपड़ा नपाओ, क्योंकि नाप हर स्टेट का अलग अलग है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मर्चेंट्स टू गो। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द ईल। जैसे अभी हम मीटर कहते हैं, उस समय क्या था? ईल, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। हर स्टेट में ये मेजरमेंट अलग था। सी, एन ईल ऑफ टेक्सटाइल मटीरियल, अगर 1 मीटर हम माने, अभी 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर। यू गो एनीवेयर, दैट इज स्टैंडर्ड, बट एट दैट टाइम इट वॉज डिफरेंट। सी, फ्रैंकफर्ट में यू वुड गेट 54.7 सेंटीमीटर, मेन्स में 55.1, न्यूरमबर्ग में 65.6 एंड इन फेरेनबर्ग 53.5। हर स्टेट में अलग अलग है। टुडे वी हैव 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर। एट दैट टाइम इट वॉज डिफरेंट. So it was very difficult for the merchants to take their goods from one place to another. So they demanded standardized weights and measures. जो हमने कहाँ पढ़ा था? नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में. He introduced those standardized weights and measures. Such conditions were viewed as obstacles. भाई रुकावट पैदा कर रही है ना ये सब, तो ज़्यादातर मर्चेंट्स ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई. To economic exchange and growth of the new commercial classes. The business classes, they raised their voice. They argued for the creation of a unified economic territory. पूरा एक एरिया बना दो जहाँ पर unhindered movement of goods, people और capital हो सके. What is unhindered? बिना किसी रुकावट के. एक standardized system कर दो ताकि सबको आसानी हो जाए. और ये हुआ in 1834. एक कस्टम यूनियन बनाया गया by the name Zollverein. What was that custom union known as? Zollverein was formed at the initiative of Prussia. ये हम बात कर रहे हैं बच्चों 39 जर्मन स्टेट्स की. Prussia was the most powerful German state. I am repeating, Prussia was the most powerful German state. उसने इनिशिएटिव लिया और एक कस्टम यूनियन बनाई गई बाय द नेम Zollverein. Most of the states were part of this custom union. The union abolished, removed all these tariff barriers. वो हर स्टेट पे जो कस्टम बैरियर्स थे वो सब खत्म कर दिए गए and reduced the number of currencies from over 30 to 2. पहले 39 स्टेट्स थे, हर स्टेट की अपनी करेंसी थी. अब वो सारी करेंसीज ख़त्म एंड देयर वर ओनली 2 टाइप ऑफ करेंसी. तो अब मूवमेंट ईजी हो गया. द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, फिर उन 39 स्टेट्स में रेलवे स्टार्ट हुआ जिसने इंक्रीज करी मूवमेंट, मोबिलिटी इंक्रीज. हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन. स्टार्टिंग हुआ था इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जिसने बाद में लीड किया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे. अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम. जब ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ, ज़ुल्वेरियन बनी जो कि एक कस्टम यूनियन थी, सारे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो ख़त्म हो गए, करेंसीज कम हो गई, वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज हो गए, तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ ना. यहीं से वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स राइज हुई जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, विच लेड टू जर्मन यूनिफिकेशन. तो दिस वॉज लिबरलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म फॉर मिडिल क्लासेस, देन इन पॉलिटिकल फील्ड एंड देन इन इकोनॉमिक फील्ड. और इकोनॉमिक फील्ड का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, जर्मन स्टेट्स, जर्मन कॉन्फेडरेशन, कैसे मुश्किल होती थी मर्चेंट्स को एंड हाउ इट वॉज सॉल्व्ड by the formation of custom union Zollverein. Next topic we'll start tomorrow, new conservatism after 1815. Till then, keep reading.